Ajmer and this is a bus that is headed to Jaipur. But the real fight, ladies and gentlemen, is about who will go to Delhi. कौन है आपका फेवरेट नेता कौन है? राहुल गांधी। नेता तो जो अच्छा काम करेगा, जनता की सुनेगा, वही अच्छा नेता है। वापिस 10 साल हो गए वही जीत रहा है और आगे भी वही जीतेगा। जब तक जिएगा मोदी आएगा। And all this is happening right under this poster that has been put in. It says दमदार कामदार फिर एक बार मोदी सरकार। क्या कहते हैं? एक ही डॉन है मोदी। एक ही डॉन है मोदी। एक ही डॉन है मोदी। And this is our election yatra that will continue on ground. We'll keep speaking to people and keep finding out what matters to you at your doorstep. Ladies and gentlemen, a very good evening and thank you for tuning in to this special broadcast on Times Now. The show is called The Election Yatra. The Election Yatra now has moved away from the national capital and we have reached where there is a lot of action. Right now, we are right inside our bus that is called the Election Yatra. And as we told you, this is our studio on wheels. And that is why it has an arrangement like this to get a full panel of guests that we'll be speaking to. They'll be debating on what's happened through the day. This is a direct BJP versus a Congress battle. And do not forget, when you talk of Rajasthan, there are a lot of things, remember, that come to our names. And there is that special place of the state of Rajasthan that both the BJP and the Congress understand. That is the reason why you had the Prime Minister in Churu just a little while earlier. Remember, the distance between Ajmer from where we are putting out this entire live broadcast and Churu is just a little over 260 kilometers. The Prime Minister earlier was also in Kotputli. That is again in Rajasthan. So you're looking at the special focus of the Prime Minister on the state of Rajasthan, 25 Lok Sabha seats. The BJP last time around, along with Hanuman Beniwal from Nagaur, had swept the state. In spite of that, one would say the BJP not leaving anything to chance. On the other side, it's also been a day of some hectic political activity in the Congress's camp that has put out its manifesto. We also do know that Rahul Gandhi is expected to be in Jaipur soon. And not to forget, the Prime Minister, ladies and gentlemen, will be in Pushkar just tomorrow. And this time around, he's going to be speaking in Pushkar. So why are we in Ajmer? What is so special about Ajmer? What do the voters think? What are the core issues? What is it that Ajmer also wants from its voters? This is what we've done over the past few hours, as you've seen in this opening ground reportage, where we've spoken to people on the local bus stand. We've spoken to women outside the Sophia College, a very famous college here in Ajmer. We've also spoken to a lot of other people who already have made up their mind, it seems. And like I said, a direct contest between the BJP and the Congress, but the Prime Minister taking that full frontal attack against the opposition, against the Congress in particular. Now, when he was speaking in Churu, and that is something that we will actually put our focus on, apart from the issues in Ajmer, is the Prime Minister's direct pitch when it comes to nation's safety and security. He says, "Humne ghar mein ghus ke mara." Now, do remember, 2019, again, this was a narrative that had picked up a lot of pace. It had a very, very strong emotive value, particularly in a state like Rajasthan, that again, remember, is a border state. You have a lot of people here, a lot of youth who go to the forces. There is also a lot of conversation about the Agniveer scheme, and we'll talk about that in just a moment. But first up, this is the Prime Minister's full frontal attack against the opposition, who still are not able to believe that we struck Pakistan. We've taught Pakistan a lesson. He said it's a new India. हम रोते नहीं हैं. हम आतंकवाद का जवाब देते हैं, करारा जवाब देते हैं. Sit back and watch first up the Prime Minister's decisive response against terrorism. छोटे-छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। मोदी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। सेनाओं का अपमान,
देश का विभाजन ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। So the Prime Minister there saying ये नया भारत है और ये मोदी है और ये घर में घुस के मारता है. Now remember, the import is not lost on anyone. When it comes to the Prime Minister, he's such an effective communicator and he gets across his messages as sharply as that. But we are talking about this because the Prime Minister has not just spoken about this in Churu in Rajasthan, where he was campaigning a little earlier, but you would recall in the last few hours there has been a lot of chatter, particularly among certain people on the social media, about a UK daily that had actually alleged that in Pakistan, more than 20 people allegedly, I'm again using that word because the MEA has categorically denied that India carried out certain assassination attempts on terror-related elements. Now, clearly, that is a tall claim to make in the absence of any kind of evidence, something that the MEA has also made it very clear. But the Congress, as expected, has latched onto that comment. In fact, there is an MLA from the state of Karnataka who says that nothing happened in Pulwama. This was a false narrative. And he says it's important to unmask the Prime Minister and his falsehood. So the Congress, would many say, is repeating the same mistake. Is this again a deja vu moment for the Congress? Because you've seen how narratives that the Congress wanted to peddle in 2014 and 2019 and perhaps again today are falling flat. People, do they believe what the Congress says? कि नहीं कुछ हुआ? Or when the Pradhan Mantri says कि हमने घर में घुस के मारा? Where do the people feel more secure? Is it during the last 10 years of the Modi government or before that? And let's not forget, terror should not be politicized. We here at Times Now make it very clear that there should be no politics on terror and there has to be complete sanity about the fact that we stand with the government of the day, we stand with our forces, we stand with what the government does. But clearly, because this is a political season, we are right in the middle of this big Chunavi Yatra. Let's quickly take this to our panel of guests that join us. And though this gentleman on the right needs no introduction because he's wearing that saffron safa, but he's Neeraj Jain ji. He's a deputy mayor in Ajmer. He's also a BJP spokesperson. Neeraj ji, thank you for hopping on to our election yatra bus here. It's good to have you here. I also have Vijay Lakshmi ji. She's a political analyst, but she does lean towards Congress. Vijay ma'am ji, thank you for coming on the bus. And also we have SP Mittal ji, who's a senior journalist, and he will also tell us that apart from the political tutu meme, which way is Rajasthan moving and what could that mean for the big battle here, also for the relevance of leaders like Ashok Gehlot, for Sachin Pilot, Vasundhara Raje. Remember, all these are leaders that have a very, very strong connect here in Rajasthan. So first up, Vijay Lakshmi ji, आपसे ही शुरुआत करते हैं. प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमने घर में घुस के मारा. कांग्रेस ने तब भी प्रूफ मांगा था. कांग्रेस ने कहा था आप हमें प्रूफ दिखाइए, हम नहीं मानते. कुछ चंद पक्षियों को मार गिराया होगा. नवजोत सिंह सिद्धू, तमाम आपके ऐसे नेता हैं जो ऐसे बोलते थे. अब आपको नहीं लगता कि लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते? आपको कोई नया नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा. मैम देखिए, ऐसा है, कहने को तो बहुत कुछ है कि घर में घुस के मारते हैं, लेकिन आप ताजा स्थिति देखिए कि चाइना हमारे पे अटैक कर रहा है, हमारी सीमा में आगे आ रहा है. तो ये क्या मतलब है? पड़ोसी देश हमें घर में घुस के मार रहे हैं. तो आप ये चीज देखिए ना, आप वहां क्यों जाते हैं? देखिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती, बट नेशनल टेलीविजन पे क्या होता है कि कई बार नेता ना भावनाओं में बह जाते हैं. आप कह रहे चाइना हम पे अटैक कर रहा है.
देखिए सोच समझ के अपने आई थिंक बातें रखनी चाहिए। चाइना किधर से अटैक कर रहा है जी। इसका क्या प्रमाण है कांग्रेस पार्टी के पास? बिल्कुल प्रमाण सामने है, दुनिया कह रही है, हम खुद देख रहे हैं, सारे टीवी चैनल्स कह रहे हैं, तो चाइना हम पे अटैक और सारे टीवी चैनल्स कह रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं आंखों से ये चीज। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं भाजपा से इसका बिल्कुल जवाब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मैम, ये तो बातें हैं जो कहने की कहते रहते हैं, बाकी आप खुद देखिए, इंटरनल खुद समझिए इस चीज को। पब्लिक कह रही है, आम जनता कह रही है। थैंक यू। बस यही बात बोलना चाहती है। आपको लगता है कि आपकी बात से लोग कन्विंस होंगे? अब नीरज जी आप सबसे पहले बताइए कि आप बार बार ये मुद्दा क्यों छेड़ते हैं? आप भी ये जानते हैं कि जब ऐसा मुद्दा आएगा पॉलिटिक्स होगा और आप कांग्रेस को बैकफुट पे लाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी वाकई कॉन्फिडेंट है, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अब की बार 400 पार होगा, तो ये पुरानी बातों को बार बार क्यों छेड़ते हैं आप लोग? देखिए, इस देश के लिए आतंकवाद कोई पुरानी बात नहीं है, कोई पुराना मुद्दा नहीं है। इस देश ने वर्षों तक आतंकवादियों को और आतंकी हमलों को झेला, और पिछले 10 साल में, और पाकिस्तान को भी झेला। चाइना का भी अटैक हमने देखा, बांग्लादेश भी हमको आंख दिखाता था, तो म्यांमार से भी जो घुसपैठी है, उग्रवादी है, वो इस देश में घुस आते थे, और हम बार बार जाकर समझौता करने की बात करते थे, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते थे। आतंकवादी हमले के बाद हम शांति वार्ता की बात करते थे। लेकिन ये नया भारत है, पिछले 10 साल में मोदी जी ने बता दिया कि जो हमारे घर में घुसेगा उसको हम उसके घर में घुस के मारेंगे। चाहे बालाकोट हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे म्यांमार में स्ट्राइक हो। ऐसी कई स्ट्राइक्स की और आतंकवादियों को सबक सिखाया। और कश्मीर में, जिस कश्मीर में हर दूसरे दिन आतंकवादी हमला होता था, हमारे सैनिक शहीद होते थे, वहां के नागरिकों को जान देनी पड़ती थी, वो आज सबसे शांतिप्रिय स्टेट के रूप में निकल करके आया है। लेकिन उसके रोज बावजूद पत्थर चला करते थे नीरज जी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग वहाँ चुनाव नहीं करा पा रहे। ये अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर सब कुछ सामान्य, आप चुनाव कराइए। चुनाव वहाँ पर होगा। वहाँ की जो रिपोर्ट्स आई है, वो अभी चुनाव करने की स्थिति की जो समीक्षा है उसकी तय करने के बाद चुनाव किया जाएगा। चुनाव से कोई इशू नहीं है। पर आप देखिए कि जिस कश्मीर में 19%, 18% वोट गिर करके सरकारें चुनी जाती थी, वहाँ बीडीसी का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, आराम से वो चुनाव हो जाते हैं। आर्टिकल 370 धारा 370 हटने के बाद ठीक है, एक भी स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, एक भी आतंकवादी घटना नहीं होती है। और कोई घटना होती है, वो आतंकवादी दूसरे दिन अपनी प्राणों को खो देता है। हमारी सेना को वो अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। घर में घुसकर मारेंगे, कोई हमारे घर में घुसेगा तो क्यों नहीं मारेंगे? और प्रधानमंत्री जी इस बात को चूरू में कह रहे हैं, वो स्थान है चूरू और झुंझुनू जहां से सबसे ज्यादा शहादत इस देश के सैनिकों ने दी है। बिल्कुल, वहां जाकर के अगर उन सैनिकों को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं और उनकी वीरता को नमन करते हुए बात करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है, इसमें पुराना क्या है? ये नया भारत है, नई बात है, नया स्ट्राइक है। घर में घुस के मारेंगे, कोई भी हमला करेगा उसको वापस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है। लेकिन नीरज जी, बहुत लोग ये कहेंगे, मित्तल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मुझे याद है प्रधानमंत्री पिछली बार जब इलेक्शंस में थे, या आपने 19 के इलेक्शन की बात की, राजस्थान में ही थे प्रधानमंत्री और पीछे पूरे मार्टर्स की तस्वीरें लगी हुई थी स्टेज पर। तो बहुत सवाल ऑपोजिशन ने भी तब मित्तल जी उठाए थे कि आप क्यों उसको मिल करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू यूज दैट पॉलिटिकली फॉर योर एडवांटेज? एंड वी मस्ट ऑल्सो टेल आवर व्यूअर्स दैट द स्टेट ऑफ राजस्थान अगेन इज extremely important for the BJP's calculation. 25 Lok Sabha seats. Hanuman Beniwal is someone who has this time switched on to the INDA alliance. Nagaur seat se lad rahe hain. But in spite of that, you see the Prime Minister literally crisscrossing the state. He's raking up important issues again and again, Mittal ji. How do you read this entire nationalism pitch, this security angle that he speaks about? Do you believe that this puts the Congress on the back foot? देखिए, सबसे पहले तो मैं टाइम्स नाउ का स्वागत करना चाहता हूं। थैंक यू सर। कि ख्वाजा साहब अजमेर की जो दरगाह है उसमें, और जो तीर्थराज पुष्कर है, अजमेर का एक इंटरनेशनल महत्व है। और आपने उस महत्व को देखते हुए यहाँ इलेक्शन, आपकी जो एक्सप्रेस है वो अजमेर आई है, तो मुझे लगता है कि जो अजमेर की बात है और अजमेर के लोगों की जो बात है, मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर उठने का उसको मौका मिलेगा। अब जहां तक राजस्थान के संदर्भ में बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 और 2019 में जो 25 की 25 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। लेकिन इस बार ये जो लक्ष्य रखा गया है कि हम वापस 25 की 25 सीटें जीतेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अप्रैल माह में हर दूसरे दिन
राजस्थान आ रहे हैं, पहले कोटपुतली आए, आज वो चूरू में थे, कल वो पुष्कर में आएंगे। तो ऐसा लगता है कि जो हर संसदीय क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री राजस्थान में जाएंगे ताकि जो लक्ष्य रखा गया 25 का 25 वो जीतने में ही आए। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, मेरा ये मानना है कि चूंकि राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है और बड़ी सीमा उसकी पाकिस्तान से लगी हुई है। कल ही हमने क्या नाम से अखबारों में देखा है कि पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, वो तस्करी कर रहे हैं, वो अफीम गिरा रहे हैं। तो ये सारी जो गतिविधियां उसको देखते हुए आज चूरू में जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि वहां जो चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे युवा जो हैं वो सेना में जाते हैं और सेना की गतिविधियों से चूरू और झुंझुनू जो संसदीय क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने आज इस बात पर भी कहा कि यदि हमें कोई क्या नाम से आतंकवादी हमला कोई करता है या गतिविधियां कोई होती है तो हम जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और उनको वहां जाके घर में घुस के पाकिस्तान में सीधा उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि पाकिस्तान में जाके क्या नाम से हमला करते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये बात कहा कि जो सेना का शौर्य है उसके लिए सबूत मांगे जाते हैं। बिल्कुल, ये जो बात उठाई है ये सीधी कांग्रेस पर है कि आखिर कांग्रेस जो राष्ट्रीय सुरक्षा से मुद्दा है उस पर सवाल क्यों उठाती है। मित्तल जी, बिफोर वी हिट अ ब्रेक, इससे आपको लगता है कांग्रेस वाकई में बैकफुट पे जाती है? बिल्कुल, उसका कोई जवाब नहीं होता है कांग्रेस के पास। ये इससे बिल्कुल कांग्रेस इससे बैकफुट पे जाती है और मुझे लगता है कि जो सेना जो काम करता है उसके लिए नाम से आपको सबूत मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेना वाकई देश की सुरक्षा कर रही है। हमने देखा है कि 370 रहते हुए कश्मीर में कितना बुरी दशा थी। आए दिन हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे। आज हम वहां देख लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। आज हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद में अपेक्षित वहां पे शांति हुई है। ठीक है, अब बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि हम राजस्थान में खड़े होकर इन सब बातों पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक बिग पिक्चर नैरेटिव होता है विद द बीजेपी इज वेरी यूज्ड टू क्रिएटिंग, इट विल गिव यू बिग टिकट इश्यूज टू टॉक अबाउट, इट विल स्पीक अबाउट आर्टिकल 370, द एब्रोगेशन ऑफ दैट, व्हाट हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्पीक अबाउट राम मंदिर, इट विल स्पीक अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स. Now what the Congress has wanted to do is essentially keep this campaign very localized. They will talk of local issues, they will talk of women's safety, paper leaks and a lot of other things. But my team tells me it's time for us to head into a quick break. But do remember, it's important to give you an insight into where we are reporting from right now. And because आपने ड्रोन की बात की मित्तल जी, हमारा भी इस समय एक ड्रोन है और मुझे वो नजर आ रहा है, and I think on our screens we'll be able to put out those drone images. This is the beautiful new Chowpatty in Ajmer, something completely unbelievable, but this is also what Ajmer is famous for, apart from the Dargah, apart from the fact that the only Brahma temple is also here in Pushkar, where the Prime Minister is going to be there. There is a Golden Jain temple here. So it's a beautiful city with some beautiful people. They have some very strong opinion on everything. The election yatra, ladies and gentlemen, is back on the other side, and our focus today is the big nationalism pitch by the Prime Minister when he says घर में घुस के मारेंगे. Will the Congress have a response on the other side? Welcome back, ladies and gentlemen. We are on board the election yatra that has now reached Ajmer, and we are speaking to the people who matter here. We have representatives from the BJP, from the Congress with us, also a senior journalist and an analyst here. And before we actually had hit a break, I was having this interesting conversation, and we asked Vivek ji, जो आए लेट हैं, कांग्रेस से हैं, अब ये कहते हैं कि कुछ काम में व्यस्त हो गए थे इसलिए लेट आए हैं. बट देखिए विवेक जी, लोग बार बार कांग्रेस को लेकर इतना सवाल उठा रहे हैं. हम जब जयपुर से अजमेर ही आ रहे थे या जयपुर में थे, लगातार प्रधानमंत्री के पोस्टर्स हाईवे पे धड़ाधड़ लगे हुए हैं लाइन से. कांग्रेस का एक पोस्टर नहीं है. ऐसा क्या हो गया? क्या पैसे खत्म हो गए, या प्रचार नहीं करना, या इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे? सर क्या हो गया? कांग्रेस दरअसल एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है. कांग्रेस को जो है हमेशा जनता चुनाव लड़ाती है. ये पोस्टर वो लोग लगाते हैं जिन्हें बाजार में माल बेचने के लिए मार्केटिंग करनी होती है. इस बार जो आप कह रहे हैं पोस्टर जितने ज्यादा दिख रहे हैं, हाँ. आप परिणाम देखिएगा. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो 25 सीट का जो दावा इन्होंने किया था पिछली बार 25 में 25 सीटें आई थी, हाँ. और अभी 400 पार का देश के अंदर दावा कर रहे हैं. यदि राजस्थान के अंदर 25 सीटों के आसपास भी ये कहीं नजर नहीं आएंगे, परिणाम इनके नजर आने लगे. जो इनके बागी जो राजस्थान के अंदर खड़े हुए हैं, हाँ. उन्होंने भी ताल ऐसी जमकर ठोक रखी है कि कांग्रेस का जो परिणाम आने वाला है राजस्थान में, कहते हैं कि कांग्रेस वो करती है जो दिखता नहीं है
वो बाद में नजर आता है। तो ये कांग्रेस के कौन अंदर इस कहता है? बार वो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है ना सर, ये कौन कहता है आपको कि इस कांग्रेस बार लड़ रही है चुनाव? इस बार जब आपको परिणाम नजर आएगा, हाँ। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, मैं नहीं कह रहा, ये पूरा राजस्थान कह रहा है। मित्तल साहब भी एक निष्पक्ष जर्नलिस्ट है, हाँ। वो भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अब 25 सीटों वाली बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना, हाँ। पोस्टर मोदी जी की ज्यादा क्यों लग रहे हैं? हाँ, मोदी उन्हीं जी के के लग रहे हैं। पोस्टर इसलिए ज्यादा लग रहे हैं कि इस बार माल कम बिक रहा है, इसलिए मार्केटिंग की ज्यादा जरूरत अब है। इस बार नीरज जी। तीर्थराज पुष्कर के अंदर, जैसा अभी मित्तल साहब ने पहले भी नीरज कहा जी था, जवाब देंगे। पहले मित्तल साहब ने कहा था कि मोदी जी हर महीने में 2 बार राजस्थान आ रहे हैं। हाँ। एक प्रधानमंत्री को 25 सीटों के लिए राजस्थान में 2 बार आना पड़े, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं, विवेक ब्रह्मा जी, मंदिर विवेक वो जी। पहले भी आए हैं। हाँ। मतलब अब जो है सिनेरियो हाँ। बदल गया है। कांग्रेस का जो अंदर जो आंदोलन चल रहा है, हाँ। क्योंकि कांग्रेस शुरू से अरे पार्टी नहीं, कांग्रेस एक आंदोलन है, वो कांग्रेस- नजर आएगा। सुनिए ना, आप कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर तो आंदोलन चल रहा है, आपके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, भाजपा में खड़े हैं। अब यहाँ देखिए, अभी नीरज जी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बीजेपी का वो गमछा लेके खड़े हैं। तो मुझे तो लगा कहीं आप कांग्रेस से देखो- भाजपा में ना चले जाए। देखो, मार्केटिंग के लिए सेल्समैनों को साथ लेना पड़ता है, अच्छा। विचारधारा के लिए नहीं लेना पड़ता। और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बहुत मजबूत है, उनकी नीरज जी विचारधारा जवाब बहुत दीजिए। मजबूत है। हम लोग जो है महात्मा गांधी के उससे आते हैं, हम लोग इस तरह की नौटंकीबाजी करना, इस अच्छा, तरह से आप प्रचार इसको प्रसार कहते हैं का ये जो नौटंकी नौटंकी है। करना, जिस तरह के अच्छा। मुद्दे लेते हैं, जिस तरह के नाम लेते हैं, हाँ। घुस के मारेंगे, ये कोई फिल्म का नाम नहीं है। जिस तरह से मोदी जी जो है पिक्चरों के नाम की तरफ प्रचार करते हैं, ये कुछ दिनों की चांदनी है नहीं तो जो आप 4 इसके दिन बाद खिलाफ राजस्थान में हैं। नजर नहीं आप आएगी। इसके खिलाफ है क्योंकि आप लेट आए इस डिबेट में, बट हमने यही सवाल सबसे पूछा था, विजय लक्ष्मी जी ने भी इसका जवाब दिया था। आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं हम घर में घुस के मारते हैं, ये गलत है? वो कहते हैं नया भारत है। आप खुद देख लीजिए बीते 10 साल में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं भारत पे, और कैसे भारत ने जवाब दिया है चुनौतियों का। देखिए, कभी भी कांग्रेस देशभक्ति के मामले में पीछे नहीं रही है। हमारा इतिहास उठाकर देखेंगे तो देशभक्तों के इतिहास नंबर उसमें नंबर 1 आएगा। और मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, देखिए कई ऐसे नेता हैं जिनके आप बयान ही खोल लेंगे नीरज जी, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। देखिए नीरज जी, इसका जवाब दीजिए कि क्या बीजेपी इज ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा, ऑल अबाउट पब्लिसिटी? यू नो, अल्टीमेटली सिर्फ मोदी जी इज द मैन ऑन ऑल योर टिकट्स। आपके और किसी लीडर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वेयर इज वसुंधरा राजे इन द स्टेट? नो वन नोज। जैसे इनका भी अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट क्या कर रहे हैं वो नहीं पता। आपका वसुंधरा राजे कहाँ है, राज्यवर्धन राठौड़ जी कहाँ है, किसी को नहीं पता। मुझे लगता है दीप्ति आप अपडेट होकर के नहीं आई हैं। अच्छा, वसुंधरा जी टिकट अपने क्षेत्र में हाँ। पार्टी का पर काम वो कर रही है, अपने प्रचार क्षेत्र कर रही की है। नेता बिल्कुल, नहीं है, एक नीरज सेकंड जी, आप वो अपने क्षेत्र की देखिए, नेता नहीं है। देखिए आप मेरी बात हाँ। पूरी होने देंगे तो आपको मेरी बात उनका समझ भी में मुझे आएगी। एक पोस्टर नहीं नजर आया कहीं आप भी पूरे आपकी राजस्थान जानकारी में। के लिए बता रहा हूँ कि अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। हाँ। वसुंधरा जी उनका हमारी भी कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पोस्टर नहीं है, सर। आपने उनका भी देखा कोई नहीं ढंग पोस्टर नहीं से, ये है। सामने लगा सिर्फ वही मोदी पर जी के देखिए, आप उसमें पोस्टर देख नजर आ लीजिए, रहे हैं। मोदी जी के साथ सिर्फ भजनलाल मोदी जी आपको जी के। दिखेंगे। मुझे लगता है, देखिए या तो मुझे जवाब देने दीजिए। विवेक जी, आप जब बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला, चलिए, उनकी बात सुनते आप हैं बड़ा जल्दी से। पत्थर रखकर दिल पर बोल पा रहे हैं। जिस पार्टी की ये बात कर रहे हैं कि अंदर लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल अंदर ही लड़ रहे हैं। ये हाँ। लड़ाई ये चल रही है कि भैया मैं भी नहीं लड़ूंगा, तू भी मत लड़। हाँ। अशोक गहलोत को जब चुनाव लड़ने के लिए बुलाया, वो बीमार हो गए। सचिन पायलट ने कह दिया मुझे पार्टी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, मैं नहीं लड़ सकता। हाँ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा मुझे तो टिकट दे दिया, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था। 2 कैंडिडेट इनके टिकट विड्रॉ कर चुके। हाँ। एक और कैंडिडेट जो कि चूरू के झुंझुनू के हैं, वो कह चुके मेरे को लड़ना नहीं था, पर पार्टी ने कहा भाई कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, इसे मैं लड़ रहा हूँ। हालत इनकी ये है कि राजस्थान में इनके पास 3 सीटों पे कैंडिडेट नहीं मिले, इन्होंने उनको कैंडिडेट बनाया है। हाँ। जो इनके खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। तो आप वहाँ चुनाव लड़ रही है 4 सीटों पे कांग्रेस के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ। हाँ। ऐसे लोगों को टिकट लड़ा रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। जिस हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे हैं, उनको तो इनको लेना पड़ा मजबूरी में। इनके पास कैंडिडेट नहीं है। तो इस प्रकार की कांग्रेस की हालत है। अंदरूनी लड़ाई की हालात ये है हाँ। कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। भाजपा से, भजनलाल से, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी से लड़ने की बात दूर की है। आपने एक बात कही हाँ। कि मोदी क्यों दिखते हैं। हाँ। नया भारत है, वो नया भारत कैसे मैं बताता हूँ। आप सुनिए इस बात को
कि इनके 70 साल के राज में क्या हुआ और 10 साल में मोदी ने क्या अच्छा किया। अच्छा नीरज जी देखिए, अब 2 और गेस्ट हैं, उन्होंने अभी नहीं बोला है, उनको बोलने इनकी दीजिए, बात का फिर जवाब आऊंगी दे रहा आपके हूँ पास, कि हम फिर अंदर काम करते नहीं, नहीं, हैं, आपके कितना पास अंदर काम आऊंगी, करते हैं, आपके पास पेपर लीक का आऊंगी, काम ये करते हैं, आपके पास भ्रष्टाचार आऊंगी, इन्होंने आपके किया। पास आऊंगी, सर, आज आपके पास भ्रष्टाचार आऊंगी, में देखिए, रिकॉर्ड इन्होंने और बनाया। गेस्ट है, पेपर लीक का देखिए सुनिए, नहीं नीरज जी देखिए, अब आप सुनिए, आप भ्रष्टाचार की बात सरकार आने के बाद में 100 दिन में आप भ्रष्टाचार की बात करें, परिवारवाद की बात करें, लेकिन सवाल आप पे भी उठते हैं, आप उन सवालों को घुमा जाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं हमारा परिवारवाद अलग है, कांग्रेस का परिवारवाद अलग है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज नेताज अपने हिसाब से तर्क को घुमा देते हैं, ये बात हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब विजय लक्ष्मी जी आप पहले जवाब दीजिए जो अभी नीरज जी ने कहा, देन मित्तल जी। हाँ देखिए मैम, ऐसा है दीप्ति जी कि ये आप जो ये बात कर रहे हैं कि ये दिखावे का चक्कर है या हमारे पोस्टर नहीं दिख रहे हैं, तो जैसा कि अभी विवेक जी ने आपको बताया कि जिनको माल बेचना होता है ना, मैं वही बात कहना चाहूंगी कि जिनके अपने पास खुद का वजूद नहीं होता है, जिनका वजूद नहीं होता है, वो इस तरीके का दिखावा करते हैं, हमारे साथ आने वो इस तरीके का दिखावा करते हैं। अच्छा विजय, हमें दिखावे की विजय आवश्यकता लक्ष्मी नहीं जी है, हम दिखावे की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता का अपमान कर रहे हैं माल कह करके, प्रत्यक्ष आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं माल कह करके। ये वही तरह का जवाब है कि टंच माल है, एक महिला के लिए टिप्पणी की थी इन्होंने, टंच माल है, आज देश की जनता के लिए कह रहे माल है। देश की जनता स्वाभिमान के साथ में सम्मान के साथ करी है, मोदी ने उनके लिए काम किया, इसलिए वो जीते हैं और जनता उनके साथ में वोट देने को तैयार है। ये देश की जनता का अपमान है, देश की जनता का अपमान है, उनको माल कह रहे हैं, बेचने की मार्केट। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, निंदा करता हूँ नीरज जी को, देखिए, लक्ष्मी जी को। रुकिए एक सेकंड रुकिए, मुझे आना पड़ेगा, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं चाहता हूँ दीप्ति जी, आप रुकिए, देश की जनता को माल कह रहे हैं, माफी मांगिए। देश की जनता को आप माल कह रहे हैं, माफी मांगिए। आप रुकिए नीरज जी, आप महिलाओं पे बहुत बात करते हैं, अच्छी बात है, ब्रिजभूषण शरण अभी भी आपके एमपी है, ये मत भूलिएगा। मणिपुर में जो हुआ वो भी लोग जानते हैं, लेकिन तू बेबे करके नहीं सुनिए। नीरज जी आप समय वेस्ट करिए, नहीं हालात आपके सामने हैं, उस पे बात क्यों नहीं करते? मणिपुर के बाद जो हालात हो रहे हैं उस पे बात क्यों नहीं करते? क्या इस प्रकार के प्रकरण हुए नीरज जी आप बाबरी देवी के साथ? अरे कहूंगी ना, पढ़े लिखे को पारसी के और हाथ आप देखिए, तू में करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, आप घुमा रहे हैं, आप बात को प्लीज मत घुमाइए। नीरज जी प्लीज, ऑडियंस बहुत समझदार है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से लोगों को ये लगता है कि शायद आप असली बात का जवाब नहीं देना चाहते। नीरज जी प्लीज, ठीक है, अरे विकास लोगों को दिखेगा ना, विकास की बात कर नहीं विकास लोगों को दिखेगा। कहाँ रोजगार दिया आपने? मित्तल जी जनता माल है, आप रुकिए नीरज जी जनता माल है, रुक जाइए ठीक है। जनता को कोई माल नहीं कर रहा है, सिर्फ एक उदाहरण है, पब्लिक हमारे लिए सिरोधार्य दिक्कत है। ये होती है कि जब भी आप नेताओं से रियल इश्यूज पे बात करते हैं, रियल इश्यूज ऐसे ही भटका दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता क्या चाहती है? मित्तल जी देखिए दीप्ति जी, हाँ जी, आपका सवाल बहुत जरूरी है और अभी लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और मैं राजस्थान में ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा और पहले चरण में और दूसरे चरण में पूरे राजस्थान में चुनाव हो चुका होगा, एक 19 को और दूसरा 26 को। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल महीने में मैंने कहा कि लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, आप देखिए जो प्रधानमंत्री हैं वो बराबर राजस्थान की संस्कृति से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा तो राजस्थान की संस्कृति दाल बाटी चूरमे की है, तो उन्होंने कहा कि दाल बाटी चूरमा और हमारा वोटर सूरमा। तो ये जो कनेक्ट करते हैं अपने आप को, जिस भी वो प्रदेश में जाते हैं वहाँ उस संस्कृति से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जिस तरीके से प्रभावी तरीके से प्रधानमंत्री अपनी बात को कहते हैं, आज भी उन्होंने चूरू में कहा कि 4.5 लाख उज्ज्वला कनेक्शन राजस्थान में दिए। मतलब वो डेटा लेके आते हैं अपने पास में कि चुनाव के दौरान हमें क्या बात कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 50 लाख कनेक्शन जल से नल वाले राजस्थान में दिए। तो ये सारी चीजें वो गिनाते हैं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस है उसको इन बातों पर सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि वो अपनी बात को प्रभावी तरीके से नहीं रख पाती है। और कांग्रेस इस पर विचार करे, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस ने वाकई 3 सीटों पर समझौता किया है और वो 3 सीटें ऐसी हैं जो इनकी खुद की परंपरागत सीट थी, जिनको ये माना जाता था कि ये कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नाम से सीकर में, नागौर में और एक बांसवाड़ा के अंदर। अब बांसवाड़ा की स्थिति में जरूर आपके दर्शकों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा में कल नामांकन का आखिरी दिन था, 4 तारीख को, तब इन्होंने क्या नाम से अर्जुन बामनिया को
अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया और उसके बाद एक डमी अरविंद क्या नाम से डामोर को उन्होंने भरवाया है। और लगता है कि क्या नाम से जो भारत आदिवासी पार्टी है उससे समझौता वहां पर करके और ये चुनाव क्या नाम से लड़ा जाएगा। जब आप ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं, तब आप राजस्थान की 25 सीटों में से 3 सीटों पर यदि आप गठबंधन में देंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस को जिस मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए वो उस मुस्तैदी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही। और ये बात बिल्कुल सही है कि सीकर के अंदर वामपंथी दलों को क्या नाम से समझौते में सीट दी गई और वही वामपंथी दल वायनाड में राहुल गांधी को हराने का काम कर रहे हैं। ठीक है मित्तल जी आपने बहुत सारी बातें और यहाँ पर साफ रखी। आई थिंक जरूरी है कि व्यूअर्स समझे कि राजनीति सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक कैंडिडेट को खड़ा कर दें, उसके साथ एक नैरेटिव बनाने की बात होती है, प्रचार की बात होती है, चाहे आप उसे कुछ भी कह। देखिए कांग्रेस को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब I'm not sure if possible, but if through our drone cameras we can get a sense of also a lot of audiences, voters, lot of karyakartas now who are just right next to us, and some of them continue to hoot whenever the BJP spokesperson is speaking and against the Congress. So this is the kind of atmosphere that you see in poll bound state of Rajasthan. एंड आप ये माने या ना माने सर, देखिए दिक्कत कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई प्लान बी नहीं है। आपके पास प्लान ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है। अब बताइए राहुल गांधी क्या आपके नेता है? वो कहते हैं मोदी जी उनके नेता है। नहीं नीरज जी, प्लान दाऊद देखिए के भरोसे चुनाव ठीक है उनको बोलने दीजिए। देखिए यही दिक्कत होती है बीजेपी के साथ। इनके पास जब तक सहल खत्म नहीं होगा ना, जब तक इनको आप चुप नहीं करा सकते। दीप्ति जी आप ये अनुभव करते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब बोलते हैं उन्हें चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पार्टी है, इनको आप कहिए महात्मा गांधी जिंदाबाद बोलिए, ये नहीं बोलेंगे। इनको बोलिए नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलिए, बोलिए नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलिए, ये नहीं बोलेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, वो ये अपने आप में क्लियर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस में आपने कहा गांधी के कांग्रेस में अब ये देखिए कांग्रेस की ये खास बात है कि ये कांग्रेसी लोग महात्मा गांधी की जिंदाबाद इनसे बुला सकते हैं। ये बात कांग्रेस की जिंदाबाद की बात है कि इस मंच पर हम इनसे महात्मा गांधी जिंदाबाद बुला सके, ये बड़ी बात है। मैं अब ये नाथूराम गोडसे जिंदाबाद नहीं कहेंगे जिसको ये अनुसरण करते। सुनिए देखिए जिस तरह नीरज जी ने सवाल को भटकाया, आपने भी सवाल को भटकाया। मैंने आपसे सवाल पूछा राहुल गांधी को लेकर, तो आप ये कहते हैं राहुल गांधी आपके नेता हैं। मैडम आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस काम करने में विश्वास करती है। उसका जो प्रोपोगंडा होता है उसमें निश्चित रूप से हम कमजोर हैं। हम अपनी बात का प्रोपोगंडा नहीं कर सकते। मैं अब ये चुप नहीं रह सकते। मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे बड़ी कमजोरी है, ये चुप नहीं रह सकते। इनका काम है मदारी की तरह खेल दिखाना। कांग्रेस ये नहीं कर सकती, ना ये करेगी। मैं आपको बता दूं राम मंदिर के दरवाजे किसने खुलाए? राजीव गांधी ने। पूरा देश जानता है। नरसिंह राव किसने किया? परंतु ये राम के नाम पर वोट मांगने वाले लोग धर्म पे राजनीति करते हैं। मैं कहता हूँ धर्म से राजनीति जितनी कीजिए, धर्म पे राजनीति मत कीजिए। ये सब लोग धर्म को बेचने वाले लोग नजर आ रहे हैं। ये दुपट्टा डाल के भगवान राम को बेच रहे हैं। ये देश के अंदर होने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। ठीक है, कांग्रेस में नरसिंह राव चुप रहते थे पर काम करते थे। मनमोहन सिंह जी चुप रहते थे, काम करते थे। ये नौटंकी की सरकार है। इनके अंदर जो चाबी का खिलौना भरा हुआ है, चलिए जब तक बजेगा जब तक मोदी जी बजाएंगे। ठीक है, आप कहते हैं ये नौटंकी की सरकार है। शांत रहिए प्लीज। लेट्स नॉट गेट हर्ल अब्यूजेस एट ईच अदर। यही दिक्कत होती है कि राजनीति का स्तर इतने नीचे गिर गया है दैट वी डू नॉट इवन रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग एक्सप्लेटिव्स अगेंस्ट ईच अदर, बट प्लीज डोंट डू दैट। इट्स इंपॉर्टेंट व्हेन नेतास कम ऑन द डायस, you ask them questions that are important to you, the audience, and we seriously hope and pray that you've kind of got a sense of what is the agenda of the BJP and the Congress, and Mittal ji and Vijay ji also telling us more about ki analysis kya hai, which way is the wind blowing in Rajasthan. Seat by seat we've tried to get this for you, but as I thank my panel of guests, I'll also want to make way to listen in to this report that I filed a little earlier. I've spoken to the women voters. This is just outside the Sophia College here in Ajmer. आधी आबादी, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी जबरदस्त वादे करते हैं। कांग्रेस ने भी न्याय की बात की है, न्याय फॉर वुमेन। बट व्हाट डू द वुमेन वोटर्स थिंक? डू दे थिंक दे आर बीइंग ट्रीटेड एज अ वोट बैंक, और दे रियली बिलीव देयर नेताज आर सीरियस फॉर देम? सिट बैक एंड वॉच व्हाट द वुमेन इन अजमेर हैव सेड सो फार। देखिए आपकी तो आवाज है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं। आप बात करेंगी हमसे?
क्या बोलूं मैं। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि देश में कितना चेंज आया है, क्या बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत आया है, हर चीज की सुविधा मिल रही है और हर चीज की मिल रही है, जैसे दवाओं की, राशन की, हर चीज की सपोर्ट मिल रहा है। मोदी सरकार सब अच्छा ही कर रहा है। और आपको लगता है कि और भी कुछ सरकार को शायद करना चाहिए महिलाओं के लिए आपको, ताकि और अवसर मिले? ये करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए महिलाओं के लिए, बहुत कुछ। मतलब रात को जैसे कभी बाहर हम नहीं निकल सकते हैं, किसी का सपोर्ट चाहिए, जैसे लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, उसके लिए सपोर्ट चाहिए। अब डर रहता है मन में कि बच्चों को बाहर ना भेजे, पढ़ाना चाहते हैं पर डर रहता है मन में, पर पहले से बहुत फर्क है। आप वोट देती हैं, क्या सोच के वोट देती हैं? महिलाओं को लेकर इतनी मतलब इस समय कंपटीशन है पॉलिटिकल पार्टीज में। बीजेपी कहती है हम महिलाओं के लिए ज्यादा करते हैं, कांग्रेस कहती है हम करते हैं, आपको क्या लगता है? मैम देखिए, मैं कंप्लीट ओवरऑल कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को एक दायरे में रख के फिर वोट देती हूँ। मैं दोनों के जो फायदे किए हैं, जो नुकसान हुए, सब पूरे साल भर का, पूरे 5 ईयर का देख के फिर आगे प्रोसीड करती हूँ। इससे ज़्यादा तो और क्या ही है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही अच्छा कर रही है, दोनों ही गलत भी करती हैं, सही भी करती हैं। डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। और रही वुमेन्स के लिए बात, तो वुमेन के लिए तो जितना करो उतना ही कम है, क्योंकि सब वुमेन्स की अपनी परेशानी, सब अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करती है, इकोनॉमिक लेवल सबका अलग है, तो डिपेंड करता है कि कौन क्या सोच के वोट देता है। मेरा ये रहता है कि मैं एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मेरा ये है कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो वर्किंग में मुझे सैलरी बेस पे क्या प्रॉफिट मिलता है, क्या टैक्सेस मेरे को पे करने पड़ते हैं, उसके अलावा मेरी क्या सेविंग हो जाती है उसके साथ, उसको देखते हुए वोट देती हूँ। तो आप क्या सोच के वोट डालोगे जब आप जाते हो पोलिंग बूथ पे? कैंडिडेट मैटर करता है, इश्यूज मैटर करते हैं, क्या करता है? नहीं, कैंडिडेट और इश्यूज मैटर करता है, क्योंकि हमारी बात कैंडिडेट ही आगे ले जाएगा। तो इश्यूज भी बहुत तरीके से मैटर करते हैं कि क्या हम सही कैंडिडेट चुन रहे हैं कि वो हमारे इश्यूज को रिप्रेजेंट करेगा जिनके सामने, गवर्नमेंट के सामने, ताकि वो इश्यू रिजॉल्व भी हो। अगर हम कैंडिडेट ऐसा ही चूज करेंगे कि वो हमारी बात को आगे तक ही नहीं पहुंचा पाए, तो कैंडिडेट को चूज उसके फेम से उसे नहीं चूज करना चाहिए, आई थिंक। अब राजस्थान में कहा जाता है कि यहाँ पर बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ कास्ट को लेके वोट डाला जाता है, ये बात सही है क्या? सही है, लेकिन मुझे लगता है आज का यूथ ऐसा नहीं है, वो कास्ट को देख के, उनके लिए कास्ट ऐसी मैटर नहीं करती। थॉट्स बहुत चेंज हो चुके हैं, जो पहले थे वो थॉट्स अब नहीं रहे, तो बहुत चेंज हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कास्ट सिस्टम यूथ फॉलो करता है। कास्ट सिस्टम देखता है वो पर्सन कैसा है, वो पर्टिकुलरली हमारी बात को, इस चीज़ के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल रविंद्र सिंह भाटी है, जो यूथ की बात सुनते भी हैं, यूथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, अपनी कल्चर से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो सिर्फ उनको एक पर्टिकुलर कास्ट उनको प्रमोट कर रही है या उनको आगे बढ़ा रही है, पूरा राजस्थान उन्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो बेसिकली आप ऐसा कोई चाहती है जो आपकी आवाज राजस्थान से दिल्ली तक ले जाए? बिल्कुल, जरूर। और प्रधानमंत्री के तौर पे आपके कोई पर्सनल फेवरेट? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम को ऐसे पर्सनल फेवरेट पे नहीं चलना चाहिए, हमारे को उनको एबिलिटीज पे चलना चाहिए। वो किस तरीके से, जिस तरीके से वो हमारे जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे देश को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे, तो हम चाहते हैं उनके जैसा कोई मिले प्रधानमंत्री जो हमारे देश को इतनी अच्छी तरह चलाए। अच्छा, मोदी जी चाहिए या कोई और चाहिए? मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। Okay, she's made her preferences very clear. So this is what happens when you're out here, you're speaking to people, you realize that people are very aware. So women, remember, make about 50% of the electorate, and if you just look at the trends, remember, women have continued to outnumber men in every election. And Rajasthan election and the Lok Sabha election is not going to be any different. Our idea is to keep a pulse on what you, the voter, think. The election yatra would want to say goodbye to you from this edition that we brought to you from Ajmer. I also want to take this opportunity to thank Neeraj ji, Vivek ji also with us, SP Mittal ji and Vijay Lakshmi ji for joining us, and also the audiences here. It's been a fascinating journey so far, but remember, we are in the Hindi heartland. The idea is to go down more. We'll be traveling towards the states of Gujarat, to Maharashtra, to Karnataka, to Tamil Nadu, and we are coming next to your doorstep to find out what you think. See you tomorrow at another location. Thank you for watching. Goodbye.